is reflected in the reluctance of state purchasers to place orders with the Jute Commissioner's Office, the regulatory authority, for the implementation of the Jute Packaging Materials Act and the Jute and Textiles Control Order. The combined effects of reduced production, sales below MSP, and lack of effective support from central authorities, the Jute Commissioner, JCI, and the Ministry of Textiles have created widespread distress. Therefore, I would urge upon the government to intervene without further loss of time to bail out the jute industry from this critical situation in public interest. Question hour. Question number 46, Sri P. Wilson. It on the House. Honorable Minister. Sir, answer has been laid on the table of the House, sir. Supplementary 1, Sri P. Wilson. Thank you, Chairman, sir. Sir, building up of modern infrastructure of agro-processing clusters close to production areas and food processing units will achieve the object of from farm gate to the consumer and will create backward and forward linkages by linking group of farmers or producers to the markets through well-equipped supply chain. Sir, my question is, what is a plan in place to deal with the major problems of establishing agro-processing clusters and formalization of micro-food processing enterprises on the lack of access to modern technology, equipment, training, access to institutional credit, lack of basic awareness on quality control of products, lack of branding, marketing, knowledge skills, environmental problems, lack of awareness of food safety standards, and water supply and electrical energy? Honorable Minister. So, the question asked by the Honorable Member of Parliament. Sir, APCs is been constructed, sir, with a hope that everything comes under one cluster. Everything that's related to food processing should come under one cluster. Mega food parks were there before this, but in mega food parks, sir, there were many issues, there were many concerns. The land requirement was huge. It was almost around 50 acres of land requirement was needed in that. And that in CLUs also, sir, change in land laws also, sir, there was a lot of concerns, a lot of issues that used to come between the state and the center and stuff. So, sir, we came up with this APCs. Now, sir, again, not major concerns are there, but then, yes, I mean, when land use laws are related, issues comes. When there are NOCs required by the state, issues do come up. But then we are in regular touch with all the state governments wherever these APCs are set up, and we are trying to resolve all the concerns. Nothing major as such is being come under our notice as of now. Second supplementary, Sri P. Wilson. And sir, as per the annexure you have given to my answer, 12 projects have been sanctioned under PM-KSY scheme. As per the APC scheme guideline dated 8/6/2022, the timeline for completion and operationalization of APC projects is 24 months, 2 years, from the date of issue of the approval letter for the projects in general areas, and 30 months for the projects in difficult areas, scheduled caste, scheduled tribe, FPFO, SH areas. The tabular column shows the funds to 10 out of 12 projects in Tamil Nadu remain unreleased in full. Sir, the grant is 35% in general areas and 50% for difficult areas, subject to a maximum of 10 crores. Why in Tamil Nadu, even after 24 months, the entire grant in aid to the projects is not released? Is it like a budget? Do you discriminate Tamil Nadu from releasing even the grants also? Minister. And of course, no kind of discrimination. I mean, this is something which has been set up by the ministry with the thought of empowering the farmers
to increase the revenue of the state and also to give employment to the youth of our country. So of course, no such kind of discrimination will ever take place. As I just mentioned in my previous answer, that most of the time in getting NOCs, most of the time in getting clearances, most of the time in getting clearances from the bank, that becomes one of the concerns, sir. Land rules also, sir, become one of the challenges in this. So I think, sir, that becomes one of the main reasons. And also, in particular, this case, sir, there was a pandemic for over 2 years, sir. So this also became one of the important reasons for the delay. But as of now, I assure you that we are in touch with the government, and we'll make sure that everything's wind up on the time now. Thank Third you. supplementary, Sri Saket Gokhale. Thank you, sir. So my question here is, for question number 46, currently post-harvest losses of food grains in India are estimated to be between 18% to 25%. And for fruits and vegetables, the post-harvest losses are even higher at about 45%. So through you, I would like to ask, and also the other thing is, sir, because of these post-harvest losses, food inflation has gone up drastically to about 9.4% in India, sir. So my question to the minister is, what steps are being taken by the ministry to bring down the amount of post-harvest losses of food grains and fruits and vegetables, sir? Thank you. Honorable Minister. Sir, one of the prime motives of this industry, of this ministry, is to reduce the wastages, and especially of the perishable items. Sir, my ministry is taking all the possible efforts. There's a data that is also there with me. If the honorable member would want, I will share that data with the member. Please do. There is a slight decrease, sir. Definitely, me and my ministry is working, and we are coming up with a lot of new technologies also, sir. In the recent budget itself, Honorable Finance Minister has announced 50 irradiation units also, sir. So this is one of the new technologies, sir, that we are bringing in to make sure that the wastage is reduced, especially of all the perishable items. If you want, I'll share the details also with you. Thank you. Srimati Sudha Narayan Murthy. Supplementary number 4. Sir, food is the most important thing in life. Even a greedy person stops sometime eating, unlike money, land, and property. There you can go to any extent in greed. So food plays an important role in one's life. Now, what kind of food we eat and what kind of a disease we get, we should think in the modern era. There are cases rising, cancer cases are rising in our country due to adulteration and many more reasons, but adulteration is one of the most important things. There are three, out of all these, I want to mention only 3 things which are mostly used in the hotel industry. Number 1, synthetic color. Number 2, synthetic vinegar. Number 3, tasting powder, MSG. Because they look nice, it is tasty. But people are not aware that it will become a problem in future. Yes. So, May I request our Honorable Minister, what are though there are many government laboratories available, they are not well equipped. The people who are trained in that are not of the great your quality. supplementary. Okay, please do something regarding food tasting and also the index in the hotels, giving the rating of the hotels in that case. Honorable Minister. I mean, it's a very important and it's a very, very serious question. Having said it, sir, my ministry is also making sure, but this mainly comes under, sir, FSAI. So they are the one who are taking care of this. Even in the recent budget also, sir, Honorable Finance Minister has announced 100 more such testing labs also, sir, where we are trying to make sure that the quality control is under checked and under all the required parameters. Thank you. 5th supplementary, Rajni Ashok Rao Patil. Through you, I would like to inquire to the Honorable Minister that what are the reasons for significant delay in the infrastructure projects under the agro-processing units cluster system? Honorable Minister. I've already answered this, sir. It's mainly because of, sir,
the CLUs, it's mainly because of the interstate, the NOCs that we need, the center and the state. So it's mainly because of those NOC requirements, bank loans, and all these collectively become responsible for the delays. And also, as I mentioned, because of the pandemic for 2 years, sir. So that was also one of the important reasons. But from here onwards, we are pushing up the things, and we are regular in touch with all the concerned states. Thank you, sir. Question number 47, Sri S. Niranjan Reddy. Sir, I place the question, sir. Honorable Minister. First supplementary, Sri S. Niranjan Reddy. Thank you, sir. Sir, my question to the ministry is due to the ever-increasing threat of cyber security-related issues. Does the ministry propose to have the National Cyber Security Coordinator NCSC, NCCC, and I4C closely coordinate with industry-leading private sector stakeholders in strengthening the cyber security environment? Honorable Minister. Members asked a very pertinent question, and cyber security is a great concern, and especially a top priority for this government. And I can assure through you to all the members, and especially the one who's asking, that there's complete coordination as far as cyber security, the Government of India, with the Ministry of Home Affairs, the NSA, and the Ministry of IT and Electronics. And this coordination, we have a series of measures apart from the policy that is in place, that in the past 10 years, the government has come up with various initiatives to ensure that we are well equipped as far as our cyber security is concerned. We have taken enough steps to protect the data of our citizens, and we are also, since it's a global challenge, we completely are aware of that and are in complete coordination with all our friendly countries. But this cyber security is an issue which concerns all of us, and the nature of it is such that it is anonymous and is also transcends boundaries. And we have taken steps with regard to having the main body that deals with cyber security, the CERT, and under which we have this National Cyber Coordination Center, which has a budget outlay of 770 crores, which primarily tracks traffic and sees that wherever there is a threat perception, we go in for preventive measures, and also if there is an attack, post that, how to course correct, all those measures in place, and all institutions that the member has mentioned, they are working in complete coordination, and I assure you, we are well equipped to handle the situation. Second supplementary, Sri S. Niranjan Reddy. Sir, my question to the ministry is, in relation to the victims of cyber security related frauds or other issues, does the government have any mitigation plan where it will compensate the victims by some kind of an umbrella trust arrangement that can be worked out? Because most of the times the victims are poor people. So I just wanted to ask the ministry if there is a plan that is being thought of. Thank you, sir. Honorable Minister. The policy, like I said, is in place, but the strategy is evolving, because this is such a sector that new issues keep coming up. And as far as the protection of our citizens is concerned, it is a top priority, and most of the time, in complete coordination with the Home Ministry and other institutions, we have been successful in ensuring that, especially with regard to financial fraud, that has been stopped. And I can inform the House that a saving of around 2,400 crores of the cyber criminals has been, and 7.6 lakh citizens. No interruption. No, nothing. Chairman, sir. No, this is bad Chairman, practice. sir. No, please, no. Let the minister reply. Please. I would Take your seat, please. I would request through you, this is a very important question and issue, and concerns not only everybody in the House, but the citizens across, and it's an evolving process. I request everybody to understand the issue. And this government is committed to protect our citizens, and we are working on various platforms as to how to stop the crime and ensure post benefits to them. Thank you. Third supplementary, Sri Raghav Chadda. Thank you, sir.
Sir, I, along with several members of this House, particularly who sit on the opposition benches, were victims of something called as the state-sponsored spyware attack, whereby our mobile phones notified us that a state-sponsored cyber attack took place, which was attempting to infiltrate our mobile phone devices. Now, members of not just this House, sir, including several journalists and eminent people in public life are also victims. Therefore, I ask through you, sir, the Honorable Minister, that whether the government has taken cognizance of such attacks. Is there a list of the people who were attacked by such spyware attacks? And thirdly, what action has been taken? This is the second time I'm raising this question in this House. Chairman, sir, as far as the member has raised an issue with regard to state-sponsored, and I can categorically state there is no such thing as far as state-sponsored hacking or tracking. What I'm going to tell you, as far as what the member has mentioned. Listen to the Chairman, sir, I have not yet completed. I have not yet completed. This is a very bad practice. Randeep, no, don't rise. Listen to it. Honorable Minister. Chairman, sir, I have not yet completed the jumping the gun. Okay. As far as this member has said regarding cases with Honorable Apple. Minister, the point is the members would want half an hour discussion. If a request will come, we'll do it. Go ahead. But hear him patiently. Go ahead. Sir, there is no requirement for that. I'm clarifying the issue. Sir, with due respect, those issues which were raised regarding with Apple, our computer emergency response team, CERT India, the organization, is in touch with the Apple, and we are in the process of getting information from the Apple that where and how they have come to this conclusion, and if they can share with us the data or the situation where they have got that information from, our agencies will act on that. Thank you. Supplementary number 4, Kumar Ratanjit Pratap Narayan Singh. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जानकारी हमको दी है कि साइबर क्राइम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा आपके माध्यम से कि तमाम लोग आज भी बैंकों से लेके और तमाम आम आदमी और पढ़े लिखे लोग भी कि बैंक डाटा से पैसे निकाले जाते हैं। हाल में ही हमने एक महिला को, जिसके 80 साल की महिला है, उनके पूरे जीवन की जितनी उन्होंने पैसे बचाए थे 3 करोड़ रुपए, इसी तरह एक डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। और इसी तरह तमाम लोग, गरीब आदमी, गांव जहां से मैं आता हूं वहां से लेके पूरे देश में इस तरह के बैंक के खातों पे अटैक होता है। इसके लिए सरकार, इनका मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस पे कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। क्योंकि ये हमने देखा है कि बहुत से हमारे नागरिक जो इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, वो बहुत से साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम के झांसे में आ जाते हैं और बहुतों के नुकसान हुआ है, आर्थिक क्षति हुई है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सरकार के संज्ञान में है, और जैसे कि मैंने कहा, ये बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है और हमारा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की विभिन्न संस्थाएं और गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसके अधीन उसमें ये शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी सूचित किया गया है। जितने तरीके के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट्स, UPI प्लेटफॉर्म्स, तमाम जगह जहां साइबर क्राइम हो रहे हैं, वो इसके अधीन कार्य किया जा रहा है। हमारी जो CERT-In है वो पूरी तरीके से
इक्विप्ड है और प्रयास करते हैं कि अधिकतर ये रोक दिया जाए। और आगे भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि ये जो ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं ये पूर्ण तरीके से रोके जाएंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री जोस के मनी। Sir, in my recent question, the Ministry of Home Affairs stated that the Narcotics Center Bureau has registered 92 cases related to the use of darknet in drug trafficking. What specific action is the government taking to monitor and to combat illegal activities on the darknet, such as the sale of illicit drugs, weapons, and counterfeit currencies, and ensure the darknet does not undermine national security efforts? How is the government ensuring that cybersecurity agencies are equipped with the necessary tools and training to effectively investigate and dismantle darknet operations? Honorable Minister. Like I said earlier, there is complete coordination between three departments: the Home Affairs, the NSA, and the Electronics and IT Department. This question of the respectable member pertains to the Home Ministry, and I can assure him that I can get the full details with regard to the issue that he has raised from the Home Ministry and get back to him. Question number 48, Shri Ramji Lal Suman. सर, प्रश्न संख्या 48। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। सप्लीमेंट्री नंबर 1, श्री रामजी लाल सुमन। सभापति महोदय, मैंने जो सवाल पूछा था कृषि मंत्री जी से, उसका बिल्कुल भी उत्तर नहीं मिला है। और ये सरकार किसानों की समस्याओं से बच के निकलना चाहती है। किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है। रामजी लाल सुमन जी, आपका सप्लीमेंट्री पूछिए। पूछ रहा हूँ सर। हाँ, पूछिए। सर, हमने पूछा ये था कि ये किसानों की समस्याओं पर 12 जुलाई 2000 को जो कमेटी बनी है, उसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उनकी कार्यसूची का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। सर मैं पूछने दीजिए सर ना मुझे। पूछ लिया आपने। सर, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो गंभीर आंदोलन हुआ 2021 में 7,500 किसान मारे गए। रामजी लाल जी, आंदोलन की गंभीर। रामजी लाल जी, आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं और परहैप सबसे पुराने भी हैं। आप अपनी सप्लीमेंट्री पूछिए माननीय मंत्री जी से। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस कमेटी, वो जो कमेटी बनी, उस कमेटी की 6 बैठकें हुई, उनका ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी, काफी लंबा सवाल पूछ लिया है। लंबा बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहां तक बैठिए, आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके, एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है।
अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई, समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रामजीलाल सुमन। महोदय, समिति विचार करेगी, बैठक होगी, ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, आप पूछिए, ये अनिश्चितता का वातावरण कैसे दूर होगा? सभापति जी, ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी, प्रश्न पूछिए। मेरा पूरक प्रश्न ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए, आप बचिए मत, कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी कुछ देना चाहते या नहीं देना चाहते? मंत्री जी, एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा अरे आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? माननीय सभापति, नहीं, रामजीलाल जी एक बार बैठिए, आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए, नहीं तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि हम उपाय कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम हैं, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, Randeep, what is this practice? Honorable Minister is replying. Let him complete. अपने क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए। इन्होंने पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा है। रामजीलाल जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार
और हम उस पर खरीद भी रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना, जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है, और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3, एम षणमुगम। रणदीप सुरजेवाला जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, Nothing will go on record. Nothing will go on record. क्या कर रहे हैं? I will name now. Are you asking supplementary 3? Supplementary 3. बैठिए। Please. All of you sit down. Mr. Randeep Surjewala, this is absolutely unbecoming of a member. Unbecoming of a member. Please, बैठिए. Please, sit down. आपसे गुजारिश है, सुनिए, मेरी बात सुनिए. Please, ask our members to sit down. I will name you. I will name both of you. I will name you. Don't do it. Please. Go to your seats. Randeep Surjewala, Jairam Ramesh, Rajni Ashok Rao Patil, Rajesh Shukla. Please take your seat. एक सेकंड, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है. सुनिए, मेरी बात बैठिए. मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है. सर, ये देश के किसान, एक बार आप चुप रहेंगे. रणदीप सुरजेवाला, nothing will go on record. I hereby name Randeep Surjewala. I hereby about to name you. I will name you. You also, Giraji, please. All of you take your seat. Honorable members, what is this? I am standing. Please, what is happening? Absolute silence. कमाल की बात है. इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं. सुनिए, आपका आचरण देखिए. ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप किसान की ये सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए, बातें बताइए. आप भी चुप रहिए, प्लीज. रजनी अशोक राव पाटिल, टेक योर सीट. प्लीज ऑनरेबल, प्लीज लिसन टू मी. ऑनरेबल मेंबर्स, भारत किसान प्रधान देश है. सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति
Jairam Ramesh, you have some problem. You have a problem which is incorrigible. नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता, क्या नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए, माननीय मंत्री जी ने, सुनिए, बैठिए, रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए, ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहाँ गायब हो गए। माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं किसान के संकट को जानता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है, उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर दे। पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा है जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। आप बैठ ना। आई नॉट गिवन परमिशन। I have given permission to none on this side. The honorable minister has very exhaustively, विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं, ज्यादा मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे हैं ना। माननीय मंत्री जी, Shanmugam ji, You don't take them. third supplementary, Shanmugam ji, please. Only what Mr. Shanmugam says will go on record. And if anyone rises now, have it from me, I will name a person either this side or that side if they don't follow the protocol. Please, ma'am. Sir, thank you, Chairman. Diyaji, please take your seat. Thank you, ma'am. Thank you, Chairman. Sir. Shanmugam ji, ask her supplementary. Please ask her. किसान के मामले में चर्चा कीजिए, प्लीज। फॉर हेवन सेक अन्नदाता की इज्जत कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, व्यवधान मत कीजिए। आप प्लीज अपना सप्लीमेंट्री पूछिए। मैं जानता हूँ आप अनुभवी आदमी हैं, अच्छी सप्लीमेंट्री पूछेंगे और मंत्री जी जवाब देंगे, प्लीज। Sir, tea and coffee is very essential for everyone in the country. Yes. It is a very long pending demand that the tea and coffee should be included in the essential commodities, because there is no MSP for the tea and coffee. The planters are all demanding this one. What is the progress of this government regarding the inclusion of the tea and coffee in the MSP? Very good. मंत्री जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और टी और कॉफी के किसानों के लिए बहुत सार्थक प्रश्न पूछा है। I appreciate the honorable member for focusing in a very constructive manner for welfare of the farmers and workers in both tea and coffee trade. Please, honorable मंत्री। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन एमएसपी अभी 23 फसलों पर दी जा रही है। ये विषय और चाय और कॉफी का विषय पीयूष गोयल जी का मंत्रालय देखेगा। मंत्री जी मैं एक बात और कहता हूं जी। मैंने सुनिए एक सेकंड जी। मैंने जब मंत्रालय का विभाजन हो गया तो माननीय पीयूष गोयल जी को आधिकारिक रूप से बुलाया और मैंने पीयूष गोयल जी को कहा कि आपके नीचे 1.5 दर्जन जो उपक्रम हैं उनमें ज़्यादा कृषि से भी जुड़े हुए हैं और आपको ध्यान है टी बोर्ड का, कॉफ़ी बोर्ड का, रबर बोर्ड का, अपेडा का किया और मैं वेलकम करूंगा सदस्यों से। और इस विषय के ऊपर कोई प्रस्ताव आएगा, आई विल हैव हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन दिस। और ये बहुत अच्छा सुझाव माननीय मेंबर ने उठाया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द मेंबर फॉर रेजिंग अ जेन्युइन पॉइंट इन फेवर ऑफ फार्मर्स, फॉर ट्रेडर्स, फॉर वर्कर्स, क्योंकि मैंने देखा चाय में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन और लोग करते हैं बाहर में। तो लेट अस कोऑपरेट लाइक दिस। तो माननीय मंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स will get together and come back to this house in the next session what step they have taken
with respect to the supplementary raised by the honorable member. सुनो, nothing will go on report. Mr. Pramod Tiwari ji, I will be forced to invoke my powers because Shakti Singh Goyal. Yes, please. I know you are finding an excuse to play politics and not to serve the farmer. No, you are not serving the farmer. You are doing injustice to farmer. मैं सदन में, I will not सदन में बैठिए, please. What is this? What is this? What is this? Your people are disturbing. What is happening? We are having an important discussion. रणदीप सुरजेवाला, सुनिए, आप आदत को बदलिए, आपसे ज्यादा किसान हूं मैं, आपसे ज्यादा समझता हूं। किसान पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी कहते हैं, सुनो मिस्टर, nothing will go on record, you keep on shouting. Now you shout for 5 minutes. I sit here. किसान की चर्चा है, आप नहीं करना चाहते, मत कीजिए। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, अन्नदाता के छुरा घोंप रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है। I don't want this. No, you are provoking. How can I stop them? You are provoking them. Please, take your seat. Honorable members, I am constrained to name Shri Randeep Surjewala, Shri Shakti Singh Goyal. सुनिए, जो फांसी पर टांगने के काम करते हैं, या किसान को फांसी पर टांग रहे हैं आप? चर्चा नहीं करने दे रहे आप, किसान की चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Nothing will go on record. आप किसान का अनादर कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको, मैं आंखों से देख रहा हूं। मंत्री जी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लगन से अपनी बात करें। पहली बार एक मंत्री ने आकर किसान के हित की बात की है, दिल से किसान की बात की है, किसान की पीड़ा को समझा है ना। प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, किसान की इज्जत कीजिए, प्लीज बैठ जाइए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद जी, ये क्या रट लगा? नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद जी, दुखी मन से मैं कह रहा हूं, कि रणदीप सुरजेवाला ये संकेत देना चाहते हैं मैं हितैषी हूं। हितैषी नहीं है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसान पीड़ादायक करो, किसान से दुश्मनी मत निकालिए। किसान से क्या बैर है आपका? किसान से क्या बैर है? नहीं, किसान से क्या बैर है बताइए मुझे, तो चर्चा क्यों नहीं होने? आप तो 10 साल रहे हैं, आप तो शासन में 10 साल रहे हैं, 10 साल में महारत कर दी क्या कोई? छलांग लगा दी आपने, क्या बात कर रहे हैं? बैठिए आप, गिरेबान में देखिए, गिरेबान में झांकिए, डोंट फोर्स मी, मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ सकता है। किसान के मामले में नहीं करने दूंगा ये, किसान की चर्चा होगी। डॉक्टर सस्मित पात्रा, ऑनरेबल मेंबर्स, I name Randeep Surjewala is hereby named. He should immediately withdraw from the house. कर दिया, please withdraw from the house. Withdraw from the house. You are directed to withdraw from the house. No, for causing disturbance, for coming in the way of discussion of farmers. Please sit down. Yes, please sit down, all of you. Sit down. What is happening? Randeep Surjewala is hereby named. He is requested to withdraw from the house.
Please, nothing will go on record. Nothing will go on record. Randeep Surjewala is named and he need to withdraw. Please. No. Randeep ji, you are defying the chair. You are continuously defying the chair. नहीं, आप डिफाई चेयर को कर रहे हैं, किसान हित की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, किसान की डिबेट को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है, ये पीड़ादायक बात है और मैं कहूँगा ये ऐसा आचरण नहीं होने। कैसे दे दे? मैं कह चुका हूँ। प्लीज रणदीप जी, प्लीज विड्रॉ, प्लीज विड्रॉ, प्लीज विड्रॉ। प्रमोद जी, प्लीज विड्रॉ। दीजिए, एक सवाल सप्लीमेंट्री चाहिए। एक से बैठिए। अरे इनको बोलने दीजिए। नहीं, आपके नेता हैं यहाँ। अरे आपके नेता हैं, इनको बोलने दीजिए। नहीं, बाकी लोग बैठ जाइए। रणदीप जी, टेक योर सीट। रणदीप जी, टेक योर सीट और सब बैठिए। सर, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा। आपने मुझे कहा ना, तो मेरा एक अनुरोध है कि सुरजेवाला जी को एक सवाल एमएसपी के बारे में क्या लीगल शेप देंगे नहीं देंगे पूछने की इजाजत दे दीजिए। बैठिए। कुछ बीमारी है। पीछे देखिए प्रमोद जी, पीछे देखिए। मान्यवर, आप तो बहुत सीनियर हैं। महादेव की कृपा से आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपने कल महादेव जी का नाम लिया। महादेव जी की कृपा से किसान पर भी कृपा कीजिए। आपने अच्छा किया, आप खड़े हो गए, मेरे को महादेव जी की याद आ गई। One second, I'll consider it. Yes, Mr. Piyush Goyal. सर, आपने बहुत सही फरमाया कि महादेव जी की इनके ऊपर बहुत कृपा है और उसका भुगतान उन्होंने चुनाव में भी बहुत बड़े मंत्री जी देश के अग्रणी श्रेणी के नेता हैं। कृषि मंत्री जी को किसी की मदद नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, महादेव जी के इनके ऊपर बहुत। Will you take your seat, please? सर, उनकी चिंता मत करिए। महादेव जी की इनके ऊपर बहुत कृपा है और उसके कारण उन्होंने चुनाव में बहुत भुगतान भी पाया। महादेव इनके साथ जुड़ा हुआ है और ये हर काम महादेव जी का नाम लेते हैं पर बदनामी का करते हैं। अध्यक्ष जी, एक ही मिनट, आपने सही फरमाया, ये सोची समझी रणनीति है। ये सोची समझी रणनीति के हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं। नोट देयर। आपके यहाँ पहले पूछा हुआ है। नो, हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। नो, I will not budge. माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सुरजेवाला, एक सेकंड मंत्री, बैठिए। एक बार बैठेंगे आप? कृपा करेंगे। एक सेकंड, कैन यू कीप क्वाइट? प्रमोद जी, ये कौन सा तरीका है कि जब एक आदमी सप्लीमेंट्री पूछता है, मंत्री जवाब देते हैं और सुरजेवाला जी हर बार खड़े हो जाते हैं? ये कौन सा आचरण है? बैठिए, एक बार बैठिए। दूसरा, मैं सप्लीमेंट्री पूछते टाइम बहुत ध्यान रखता हूं कि हर वर्ग रिप्रेजेंटेटिव हो। अभी तो बाकी है सप्लीमेंट्री। नहीं, पर
यदि अगर मैं व्यवधान करने वाले को प्रोत्साहित करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। आप मेरे को माफ कीजिए, मैं नहीं करूंगा। नो, आई विल नॉट गो देयर। प्लीज बैठिए, प्लीज, नो वन वे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्लीज हियर द ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अधिकतम एमएसपी पर खरीदी हुई और इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द ये जितनी किसान पैदा करेगा ये सरकार खरीदेगी। समृद्धि पोर्टल हमने बनाया, किसान रजिस्ट्रेशन करवाए, उसकी पूरी उपज खरीदेगी। और माननीय सभापति महोदय नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आंकड़े गवाह है कि जब इनकी सरकार थी तब खरीदी कितनी होती थी और जब हमारी सरकार है तब कितनी खरीदी होती। माननीय सभापति महोदय, 2004-05 से 13-14 के बीच केवल 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई और ये सरकार थी 14-15 से लेकर 23-24 के बीच 69 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन खरीदी। माननीय सभापति महोदय, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गेहूं की खरीद 4-5 से 13-14 के बीच 21 करोड़ मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 33 करोड़ 38 लाख मीट्रिक टन हो गई। ये सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, अब सुनना पड़ेगा दलहन की खरीद सप्लीमेंट्री गन की नोक पर दूंगा, यहाँ मेरे तलवार रखकर लोगे। माननीय सभापति, आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट बच। मेरे पास है और तरीके से देखकर करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैनर विच इज फेयर एंड इक्विटेबल। I don't encourage a person who rises every second, doesn't allow anyone to speak, does not have patience to listen to the honorable minister. The honorable, you, बच्चे की तरह जिद क्यों कर रहे हो रणदीप जी? Please don't do it. No, please. Nothing will go on record. I don't want to join issue with you. I don't want to. What are you doing? माननीय सभापति महोदय, nothing is going on record. Nothing except what the honorable minister said. पूरी कर दे दी जाए। मंत्री जी, देश ध्यान से सुने। मंत्री जी, आप देश की जनता को सदन के माध्यम से जानकारी दीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, दलहन की खरीद वर्ष 2004-05 से 13-14 तक केवल 6 करोड़ मीट्रिक टन थी, 6 लाख मीट्रिक टन, केवल 6 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़कर अब 1 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन हो गई है। ये घड़ियाली और सुबह। माननीय सभापति महोदय, तिलहन की खरीद जब इनकी सरकार थी केवल 50 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रमोद जी, धान की खरीद के लिए प्रमोद जी न्यूनतम क्या तरीका है? कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को सुनिए। माननीय सभापति महोदय, फिर देखिए किसान को इनको क्या है कि कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि मैंने पार्टिसिपेट किया। अरे साहब, किसान का मामला है, मेरा तो जीव होता है। मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी से, आप कितना अच्छा सुझाव दिया। एक सुनिए, आज के प्रश्न का सबसे बड़ा फायदा है कि एक माननीय सदस्य ने चाय और कॉफी के बारे में इतनी गंभीर बात कही है जिसका नतीजा निकलेगा। मैं सार्थक चर्चा चाहता हूँ। बैठिए। हाँ, माननीय सभापति महोदय, कपास की गांठ ये खरीदते थे केवल 26 लाख, हमने बढ़ाकर 31.17 लाख कपास की गांठ खरीदी है। और माननीय सभापति महोदय, संस्थागत ऋण इनके समय ऊंचे ब्याज की दरों पर मिलता था, केवल 7.3 लाख करोड़। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 25 लाख करोड़ रुपए संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब इनकी सरकार थी धान की खरीद के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित किसान केवल 78 लाख थे, अब बढ़कर 1,03,82,248 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, गेहूं के खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होने वाले किसान केवल 20 लाख थे, जो 22,69,263 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानीय शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता, और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए की जाती है। यह कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय, मैं रखता हूं, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबंधित घटकों की किस पर विचार करते हुए बस्ती पूरक मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पर रखता हूँ, बचा के रख ये ले जाओ, ये दे दें, दे दिए, वो दे दिए, ये भी दे दिए। ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर, माननीय सभापति महोदय, केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। श्री बंसीलाल गुर्जर, आजकल सप्लीमेंट्री। नथिंग इज गोइंग ऑन। माननीय सभापति महोदय,
मैं माननीय मंत्री जी से, वैसे उन्होंने कहा है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2013-14 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी की गई और 2014-15 से 2024 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी हुई है? क्या सरकार ने देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक की प्रगति क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, बंसीलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं फिर ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 4-5 से 13-14 के बीच में केवल 6,29,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदी जाती थी और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार 1,70,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीद रहे हैं। 25 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं। और आदरणीय माननीय सदस्य बंसीलाल जी ने कहा है, वो विद्वान कृषक हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस बार हमने तय किया है कि मसूर, उड़द और तुअर पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाएगी। चिंता न करें, देश का किसान दलहन पैदा करे, हम खरीदने का काम करेंगे। Honorable members, further general discussion on the union budget.